यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ ग्रेजुएशन के लिए प्लीज़ मत आइए, बिकॉज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर 2 वीक्स के बाद मैं फिर से आ गया हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड और भी बहुत सारे काम थे। बट टुडे हम जाने वाले हैं ट्रैफलगर स्क्वायर, इन लंदन में एक जगह है, तो वहाँ पे हम घूमेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए रहेगी। और अभी मुझे लग रही है ठंड, तो मैं पीने जा रहा हूँ हॉट चॉकलेट। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke. तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लाइक 3D इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। ऐसा लगेगा कि रियल में वो चीज़ें सच में चल रही हैं। और लोग यहाँ पे आते हैं और आराम से बैठ के देखते हैं चीज़ों को। देखिए, यू कैन फील लाइक साउंड इफेक्शन भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सच में चल रही हैं। आई नो इट्स रियली कूल। To break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, beat you to a seizure. Then fuck your moms, hit the skins to amnesia. She don't remember shit, just the 2 hits. Her hitting the floor and me hitting the clips. Sucking on the tits, had the hooker begging for the dick. And your moms ain't ugly, love, my dick got rock quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was jumping around and jumping around. Chapter then I asked her who's the man, she said B.I.G. तो गाइस फाइनली वी आर इन ट्रैफलगर स्क्वायर। तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पे जैसे 4 टाइगर्स, लॉयंस हैं, सॉरी झरना है पीछे, बहुत बढ़िया। लाइक इट्स काइंड ऑफ सेंटर ऑफ लंदन। तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। यहाँ से माइट भी लंदन आई भी दिखता ही होगा आसपास कहीं से। Don't affect me, I hit them with the tech G, disrespect me, my potency is deadly. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy. Slit the wrist, a little sis, after she sucked the dick, I stabbed her brother with the ice. It's really very very beautiful, बहुत बढ़िया है यार। Found your father hiding in the room, fucked him with the broom, split him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you till you're gushy, so please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little hooker screaming. Because you know I love it young, fresh and green, with no in between, know what I mean? The weak of the strong, we got it going on. You're dead wrong. The weak of the strong, we got it going on. Found your father hiding in the room, fucked him with the broom, slid him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it. तो गाइज़ हमने वो स्क्वायर देख लिया था, बहुत बढ़िया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ बकिंगम पैलेस की तरफ। एंड रास्ते में जाते जाते मुझे क्या दिखा है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऑब्वियसली आपको भी लगेगा, जो है हमारे इंडिया का झंडा आपको दिख रहा होगा। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। माइट भी ये है जीवा स्पा पूना, बहुत बड़ी जगह है, नाइस, आई लाइक इट। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा बकिंगम पैलेस की कुछ शॉट्स, देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज अभी हम आ गए बकिंगम पैलेस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो बकिंगम पैलेस एक रानी के बहुत सारे महल्स हैं, उनमें से एक का नाम है बकिंगम पैलेस। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और अपनी एक मेमोरी को सेव करते हैं। इट्स नाइस। Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you till you're gushy, so please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little hooker screaming. Because you know I love it young. यहाँ पे गाइस 24 आवर्स जो हैं गार्ड्स तैनात रहते हैं।
अगर आप देख सकते हो तो आप देखिए तो इनकी लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म रेड थी, तो मे बी इनकी बहुत सारी यूनिफॉर्म्स हैं जो चेंज होती रहती हैं। Feeling it, hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you to your gushy, so please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little hooker screaming. Because you know I love it young, fresh and green, with no in between, know what I mean? तो गाइस ये है बकिंगम पैलेस। तो यहाँ पे इसके पास एक बहुत बढ़िया पार्क है। तो लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था तो काफ़ी सनी डे था, बट टुडे इज़ क्लाउडी एज़ यूजुअल। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो मौसम रहता है वो रहता है लाइक बादल रहते हैं और बारिश रहती है, बट दैट्स फाइन। बट बारिश तो नहीं है, बट क्लाउडी है आज। तो मैं वही जो बात मैं बताने वाला था गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एज एक मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे आते हैं और जो अपना फ्यूचर सोचते हैं यहाँ पे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जिनकी फैमिली अच्छी खासी है और जो यहाँ पे ओनली स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लाइक दोज पीपल्स हु एक्चुअली रिच, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एज अ मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे आके स्टडी करना चाहते हैं, ये उनके लिए रहेगी कि गाइस यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ ग्रेजुएशन के लिए प्लीज़ मत आइए, बिकॉज वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि बच्चों को आफ्टर 12th बाहर आना है। डजेंट मैटर विच कंट्री दे आर गोइंग, they just want to go abroad. So if you just finished your bachelor's, or sorry to say, if you just finished your 12th, so please don't come in UK as a for the graduation, because what's going on यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन की फ़ीस है वो पर ईयर आपको मे बी 12,000 पाउंड से लेके 15,000 पाउंड्स के बीच में देनी पड़ती है। तो जो अगर आप मान के चलो, अगर आप ओवरऑल भी लगाओ तो आपको 3 सालों में 36,000 पाउंड्स जो है पे करने पड़ेंगे। इंडिया के अराउंड 36 लाख रुपए हो गए। तो अगर आप देख लो कि अगर आप 3 साल में 36 लाख रुपए सिर्फ फ़ीस पे कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो, जैसे कि रहने का, खाने का, पीने का, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपको बताइए। तो अगर आप सिर्फ 36 लाख जो है फ़ीस पे कर सकते हो तो फिर तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, कि अगर आप 8 लाख दे के अपनी आधी फ़ीस पे करके और अगर आप 1 साल की फ़ीस पे करके आप यहाँ पे आओगे और अगर आपको काम मिलने वाला है और अगर आप यहाँ पे काम करके अपनी फ़ीस पे कर दोगे, अपने और भी जैसे लोन जो आप लेकर आओगे यहाँ पे आकर पे कर दोगे, तो लिटरली गाइस इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं और जो यहाँ पे आके मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, तो उनका वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि वो बैचलर्स में आते हैं यहाँ पे और 3-4 महीने स्टडी करते हैं, 6 मंथ स्टडी करते हैं। सो व्हाट हैपेंड इज़ अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फ़ीस नहीं पे कर पाते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स, अब बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बैचलर पे यहाँ पे आते हैं और जो उनको लगता है कि हम फ़ीस पे कर पाएंगे, हम अपने लोन्स पे कर लेंगे, बट यहाँ पे आके वो चीज़ें नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको स्टडी छोड़नी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे यूके में एज अ स्टूडेंट आते हो, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, तो आपकी जो सबसे पहली प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो आपकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे आके स्टडी नहीं करूँगा, मैं अपनी स्टडी छोड़ दूँगा, मैं अर्निंग करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, आई एम डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू गाइस इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट होती है वो आपको वीज़ा इसलिए देती है क्योंकि उनको ये होता है कि ये बच्चा यहाँ पे स्टडी करेगा। और जब आप फ़ीस नहीं पे करते, आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाते और जब आप स्टडी छोड़ देते हो, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि आपका वापस जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से वापस चले जाते हो, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे होम ऑफिस के लोग जो होते हैं, जो ऑफिसर हैं, जो आपको पकड़ लें और अगर आप वापस चले जाते हो तो आप फिर से इस कंट्री में वापस नहीं आ पाओगे। इवन आप किसी और कंट्री में भी जाओगे तो आपके वीज़े लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका वीज़ा है, जैसे आपका पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट। तो गाइज़ आप सबसे पहली बात ये है कि मैं बस यही बताना चाहता था आप इसमें कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएशन पे यहाँ पे मत आइए, बिकॉज़ यहाँ पे 36 लाख देना इज़ नॉट ईजी।
आपको लग रहा है कि मैं 1 साल की फ़ीस दे के आऊँगा और मैं ये चीज़ें कर लूँगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, लाइक आप ऐसे मान के चलो कि 100 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट होंगे एग्जैक्टली जो यहाँ पे आके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है पूरी कर पाते हैं। बिकॉज 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, आपकी जॉब्स जो हैं चेंज होगी, राइट। आपकी स्टडी का एवरी ईयर में आपकी स्टडी का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। बहुत सारा जो है आप मान के चलो कि आपका जैसे जो आप मनी यहाँ पे स्पेंड करोगे उसको 25% में आपकी इंडिया में ग्रेजुएशन हो जाएगी और आप वहाँ पे आप वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करिए और यहाँ पे एज अ मास्टर्स आइए, जिसमें क्या होगा क्योंकि 3 साल की स्टडी ख़त्म करने के बाद भी आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और 1 साल की मास्टर करने के बाद भी आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो दोनों चीज़ें समहाउ इज सेम, राइट। बस द डिफरेंस इज़ स्टेइंग पीरियड। 3 साल के वीज़े में जैसे 3 साल की स्टडी में आपको 3 साल यहाँ पे रुकना पड़ेगा, 3 साल यहाँ पे आपको रहने का ऑप्शन मिलती है और मास्टर की स्टडी में आपको 1 साल की स्टडी के लिए आपको रुकने की ऑप्शन मिलेगी। तो ओवरऑल मतलब कि बैचलर्स में 5 ईयर्स, मास्टर्स में 3 ईयर्स। बट वही है कि अगर आप पास हो गए, आप अपनी फ़ीस दोगे तभी आप मतलब 5 ईयर का जो पीरियड है यहाँ पे आप स्पेंड कर पाओगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती है, अगर आप फ़ीस नहीं पे कर पाते तो हाउ यू गोना मैनेज। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो गाइस आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको सही लगे। इफ़ यू वांट टू कम डजंट मैटर, लाइक आपके लिए फ़ीस मैटर नहीं करती, आप पे कर सकते हो, ठीक है। आपकी 3 साल की स्टडी आपको मतलब कि आप करना चाहते हो बिकॉज यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं कर लूँगा तो वो क्योंकि यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स को समटाइम्स क्या होते थे 3 क्लासेस भी लगानी पड़ सकती है हफ्ते में और 4 क्लासेस भी लगानी पड़ सकती है, 2 क्लासेस भी लगानी पड़ सकती है। 2 दिन क्लासेस होती है, 3 दिन क्लासेस होती हैं, 4 डे क्लासेस होती हैं, 4 डेज़। तो इन आप अगर ऐसा बोल सकते हो कि क्लासेस लगाना इज़ मस्ट, आपको क्लासेस लगानी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू पास, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि आइए, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको कोई यहाँ से बोल रहा है कि यार कि ऐसा है, ठीक है, आपको सर्च करिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए क्या उनका पैटर्न है, क्या उनकी फ़ीसेस हैं, क्या यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एवरीथिंग जो है आपको पहले से पता होना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट होते हैं। इवन मेरे खुद के दोस्त जो मेरे साथ बैचलर्स में आए थे, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने 1 साल फ़ीस भरी, वो क्लासेस भी गए, सब कुछ करा उन्होंने, बट 1 साल बाद वो फ़ेल हो गए। और जिससे क्या हुआ कि जो उन्होंने फ़ीस पे करी थी, 1 साल नहीं 1.5 साल, सॉरी टू से 1.5 साल उसने फ़ीस पे करी और उसके बाद उसने जैसे 1.5 साल के बाद समहाउ वो कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने क्या करा, उसका कैश लेटर विड्रॉ करवा दिया और उसको कहा कि आप वापस चले जाओ। अब जो बच्चा 1.5 साल से फ़ीसें पे कर रहा है, क्लासेस लगा रहा है, फिर भी वो बच्चा फ़ेल हो जाए तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो अभी वो यहाँ पे एज अ कैश इन हैंड में काम कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ जी, एजेंट कोई बोल रहा है कि हाँ जी ग्रेजुएशन में चले जाइए, वहाँ पे जाके बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, गाइस ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप कहते हो कि हमें यू हैव टू, अगर एक्चुअली अगर आप ये कहते हो कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो जो आपका आज का कदम है वो सही रखना बहुत ज़रूरी है। किसी की मिस गाइडेंस में मत आइए, ठीक है। बाकी तो चल ही रहा है गाइस। बाकी प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे दिल में बहुत दिल और दिमाग में बहुत मतलब टाइम से था कि आपको बताना है इस चीज़ के बारे में। तो थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि लाइक जो वीडियोज़ हैं मैं एवरी वीक पोस्ट करूँ एंड मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता बिकॉज काम मेरा जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज़ करता है, तो इसलिए मैं थक जाता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। लाइक आई विल ट्राई इन बिटवीन 2 वीक्स आई विल डेफिनेटली पोस्ट 1 वीडियो। लाइक समहाउ कहीं मैं घूम रहा हूँ या समवेयर आई एम ट्रैवलिंग और समवेयर आई एम डूइंग समथिंग एल्स और कुछ informative like today. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in the choke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rock